Radhe Radhe. Today our topic is about thyroid gland. And this previously we have discussed so many gland, means 2 or 3 gland already discussed. And this is I think last topic of class 10th ICSE. Okay, so please listen. Thyroid gland. This is the bilobe structure. What is the meaning of bilobe? Bilobe you are seeing as one lobe here and one lobe here. Means these are looking like wings of butterfly. ये तितली का विंग्स की तरह दिख रहा है और ये तितली का विंग्स की तरह दिखने वाला जो ग्लैंड है, जो बाइलोब स्ट्रक्चर है, उस लोब स्ट्रक्चर का नाम है थायराइड ग्लैंड. ओके, बाइलोब स्ट्रक्चर मीन्स बटरफ्लाई शेप है. ओके, two lobes are joined by narrow isthmus. What is the meaning of isthmus, sir? Meaning of isthmus is interconnections. दोनों लोब, ये लोब और ये लोब जहाँ पे जुटा हुआ है, उस जुटा हुआ पोर्शन को हम लोग isthmus के नाम से जानते हैं. Bilobe structures are joined together and the portion where they are joined to each other, that portion is known as bilobe structure. Okay, and next part. Sorry, that joint structure is known as isthmus. Okay, means this is the larynx. ये ओसोफेगस है, या फिर मान लो कि बैक व्यू से जब तुम देखोगे तो ये तुमको ओसोफेगस नजर आएगा और ये दोनों ओसोफेगस के साइड में जो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं. ओके, ये वाला स्ट्रक्चर. और इसी स्ट्रक्चर के में छोटा छोटा 4 स्ट्रक्चर, बोले तो 2 पेयर में, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैराथायरॉइड. ओके, यहाँ पे ये हो गया बैक व्यू. जब इसका फ्रंट व्यू देखोगे, ट्रैकिया, तो सामने से ट्रैकिया दिखेगा, बोले तो जो एयर पाइप है वो दिखेगा. ओके, और जो हमारा पीछे साइड से वो ओसोफेगस दिखेगा. तो ये ओसोफेगस साइड से है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा ट्रैकिया साइड से. तो ये जो लैरिनेक्स है, बोले जो एयर पाइप है, पी फेरेनेक्स, ध्यान रखना है, इसका ट्रिक है. पी से फेरेनेक्स, पी से फूड पाइप, एप से फूड होता है तो उसको पी से याद रखिए. निमोनिक्स, एज निमोनिक्स, पी इक्वल्स टू फूड, P equals to pharynx, and another word is larynx, means voice box. So this two bilobe structure is thyroid gland and this is isthmus, the portion which is connected by two lobes are connected by the structure. That structure is known as isthmus. Okay, next. Okay, narrow isthmus, that is interconnection. Secreted 2 hormones. Mainly thyroid gland is secreting 2 type of hormone named as thyroxine and second one is known as calcitonin. Okay, in our syllabus only thyroxine we have to study. Okay, next, what is the main work of thyroxine hormone? Maintain basal metabolism. What is the meaning of basal metabolism? Basal metabolism means basic oxidation, production of heat. Okay, that is means metabolism. Metabolism means after breakdown of food, production of energy. Then if there will be the production of energy, then heat will also produce, and if there will be heat produced, then that is the metabolism. Okay, rate of cellular oxidation. Here the definition is rate of cellular oxidation. What is the meaning of cellular oxidation? Meaning of cellular oxidation means in the presence of oxygen. What is the what we can say that meaning of oxidation? Meaning of oxidation is addition of oxygen and removal of hydrogen and removal of electron. Here I have to need the sense of oxygen. So if there is addition of oxygen, then we can say that it is oxidation. So cellular oxidation. Cellular oxidation means the presence of oxygen. Means oxygen is present in our blood. When that blood oxygen goes to combine with what we can say that means that oxygen combines with blood, means or we can say that when food is break down, जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उस केस में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है. तो उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं दैट इज सेल्यूलर ऑक्सीजन. मींस द ऑक्सीजन presence in the cell, that is cellular oxidation, and that cell oxygen breaks down the food, they forms the energy. Just we know that there is a reaction that glucose in the presence of oxygen, CO2 plus H2O plus 38 ATP, that is in the presence of oxygen. Okay, resulting in heat production as at rest. When our body is in rest, then they produce heat. Where heat is, how heat is produced? When there is metabolism in our body, then the what we can say that जब मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में चल रहा होता है उस समय बहुत सारा रिएक्शन प्रोसीड होता है. तो जो रिएक्शन प्रोसीड होता है उसी में से एक रिएक्शन है जिसमें कि 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है. उस एनर्जी रिलीज होने के दौरान हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है. ओके,
हीट प्रोडक्शन ऑल्सो अफेक्ट जनरल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडीज मीन्स ये हार्मोन्स जो है हमारे जनरल ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिफिकेशन? ऑसिफिकेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बोन्स, मतलब कि बोन्स का इकट्ठा होना, बोन्स का मसल्स के साथ ऐड होना, स्ट्रॉन्ग बनना, बोन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना, ये हम लोग कह सकते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ओके नेक्स्ट बोन्स फॉर्मेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ये थायरॉक्सिन का काम है। मेंटल डेवलपमेंट होना, ये भी थायरॉक्सिन का ही काम है। ओके यस, इंक्रीज इन सेक्रेशन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, वाइस वर्सा। अगर थायरॉक्सिन का इंक्रीमेंट अगर बॉडी में मतलब कि इसका सेक्रेशन बढ़ जाए, तो जब सेक्रेशन बढ़ेगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, अगर सेक्रेशन डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज करेगा। ये है इसका थायरॉक्सिन का फंक्शन। ओके नेक्स्ट, if thyroid gland is more secreted or less secreted, means if there is over secretion or under secretion, there are two conditions. First, if there is under condition, then thyroid gland, there will be hypothyroidism, the disease which is occurred, that is hypothyroidism. Means if there is low secretion, if there is low secretion of thyroid hormone, yeah, thyroxine, that is thyroxine, thyroid is the gland and the hormone which secreted is thyroxine. If there is low secretion, then it is hypothyroidism. Okay, means thyroxine hormones का कमी हो जाना, इसीलिए इसको बोलेंगे hypothyroxine बोलेंगे। Okay next, insufficient में leads to three condition, अगर कम सेक्रेट हुआ उसमें अंदर तीन केस बन सकता है। पहला, एक तो सिंपल ग्वाइचर हो सकता है, क्रेटिजिज्म हो सकता है, माइक्सोइडिमा हो सकता है। सिंपल ग्वाइचर के दौरान क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड एंड स्वेलिंग इन द नेक, यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो गला फूल जाता है, ये बस इसी वजह से होता है, इसी को बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। ये मोस्टली हिली रीजन में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ के लोगों के सॉइल के अंदर मिनरल्स बोले तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं, आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी होने के कारण उनके भोजन में डायरेक्टली आयोडीन का कंपोजिशन ज़्यादा, मतलब वैसा उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि आयोडीन का कमी ना हो, आयोडीन जो होता है उसको बराबर अमाउंट में मिल सके। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड एंड स्वेलिंग इन द नेक, ये वाला एरिया फूल जाना, मतलब सबसे पहले थायराइड में प्रॉब्लम होगा, और थायराइड में प्रॉब्लम होगा तो हमारे जो मसल्स है उसमें हम लोग को प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट होगा। ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, मोस्टली हिली रीजन, यस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन का कमी होगा अगर हमारे बॉडी में, चाहे वो हिली पर्सन हो चाहे वो नॉर्मल लैंड पर्सन हो, ठीक है, जो इक्वल वाटर लेवल पे रहते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आयोडीन का कमी होगा तो we will cause simple goiter in our body. Okay, now क्रेटिज्म affect growth of child, क्रेटिज्म कहने का मतलब हो गया कि ग्रोथ ऑफ चाइल्ड को अफेक्ट करने वाला। अब कि कैसे अफेक्ट करता है, ड्वार्फिज्म से, ड्वार्फिज्म कहें तो साइज छोटा होना, हाइट छोटा होना, ड्वार्फिज्म, बौनापन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि मेंटली डेवलप नहीं होना, ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट, अर्ली एट्रोफी, डिजेनरेशन ऑफ द थायराइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, बोले तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, नहीं रिलीज हुआ, इसका क्या मतलब है कि जिस अमाउंट में होना था अगर नहीं रिलीज हुआ तो दैट विल कॉज एट्रोफी। मीनिंग ऑफ एट्रोफी इज act as a vestigial organ. If any organ is not developed due to any hormone, just like I am talking about thyroxine hormone, if there is no any development of any organ or body parts in our body due to thyroxine, then a disease is caused in our body known as atrophy. And atrophy is a disease in which body parts become vestigial, no usable. Next, myxoedema affect adult, mostly it occurs in adult. Person becomes sluggish with swelling of face and hands. Sluggish कहने का मतलब nonsense, de-energetic, laziness जैसा, nervous जैसा, वैसा इसको बोलते हैं sluggish, with swelling of face and hands. Face will swell and hands will also swell. Okay. Now, what will happen if there is over secretion of thyroxine? Hyperthyroidism means cause exothalamic goiter, means outward, आंख बाहर आ जाना, मतलब किसी किसी का आंख बाहर है, आंख नॉर्मल ही रहेगा लेकिन लगेगा कि आंख कितना बड़ा बड़ा है, मतलब बीमारी जैसा लगेगा, उसको बोलते हैं एक्सोथैल्मिक गोइटर। ठीक है, ये वाला एक्सोथैल्मिक, आउटसाइड, और थैल्मिक मींस आई। प्रोट्रूनिंग ऑफ, प्रोट्रूशन ऑफ आई, प्रोट्रूशन मींस हो गया आई में डिजीज होना, डिजीज होने के साथ साथ आई में ड्राइनेस हो जाना, और ड्राइनेस होने के साथ आंख बड़ा बड़ा दिखने लगना, आई बॉल्स नजर आना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गोइटर इन नेक, नेक में गोइटर्स हो जाना, गोइटर ये होता है ओवर सेक्रेशन। ज्यादा आयोडीन खा लेते हैं तो बोला जाता है ना कि ज्यादा आयोडीन नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नमक खाने से क्या होता है, गोइटर होता है।
इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म में इंक्रीमेंट आ जाना, इसलिए नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, और एक चीज है कि बोन्स को भी वो डिसॉल्व करता है ज्यादा नमक, ठीक है। रैपिड हार्ट बीट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट बीट बोले तो सांस तेज हो जाना, और तेज तो हो जाएगा, और तेज है इसका मतलब क्या है, सांस छूट रहा है, छूट रहा है करने का मतलब छोटा छोटा ऐसे, मतलब छोटा छोटा सांस लेना, इसको भी बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। ओके, और छोटा सांस होगा तो आपको सांस ज्यादा लेना ही होगा। अब हम इतना सा सांस ले रहे हैं एज फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ऑक्सीजन देना होगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे। जल्दी जल्दी क्यों लेंगे, ताकि ऑक्सीजन जल्दी पूरा हो सके, सारा ऑक्सीजन मिल सके बॉडी को। और अगर जल्दी जल्दी सांस नहीं लेंगे हमारे बॉडी में बीमारी हो जाएगा, ठीक है। बोले तो ऑक्सीजन से डिमांड पूरा नहीं होगा, क्योंकि लंबा सांस जब हम लोग लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक बॉडी को सुकून मिलता है, और सुकून मिलने के साथ साथ ये होता है कि सही अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। तो ये हमारा था अंडर सेक्रेशन, ओवर सेक्रेशन, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो, ठीक है। सारा जो भी हमारा ये नोट्स के फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में आपको शेलिना पब्लिकेशन का क्लास 10 का सारा किया गया है शॉर्ट फॉर्म। इसलिए गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।